हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा
Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Today you are seeing the picture from Naimisharanya. Is a Naimisharanya is called a Brahma Kunda. In the Brahma Kunda, hundreds of people they go in the water. Is a waist deep water. You can go round and round and chant your rounds. Go round and round and chant your rounds. So this is called Brahma Kunda. There are only 3 temples of Lord Brahma. One is in Pushkar, one is here in Naimisharanya, and one is Rameshwaram. Because Lord Brahma was cursed by Narada Muni that he will not be worshipped in the Bharat Bhumi. But 3. So, 3 places are there. So here you are seeing Brahma Kunda of Naimisharanya. Krishna, Prabhu, you can unmute it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Nashpraeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtike. So, which shloka I have to take? You may have taken something yesterday. Yesterday we didn't have, because yesterday we had the Guru Maharaj's class. Okay. We didn't have. Okay. So we are starting second canto of Srimad Bhagavatam by the mercy of Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, blessing of the Vaishnavas, and because of your arrangements, Bhagavatam recitation, understanding and preaching is going on uninterruptedly for the last more than 135 days. So today, everybody says Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Let us see what is the purport of this. So it says Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om, O my Lord, Namaha, my respectful obeisances unto you, Bhagavate, unto the personality of Godhead, Vasudevaya, unto Lord Krishna, the son of Vasudeva. Translation: O my Lord, the all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. There is a lovely purport. We must listen it very carefully. Vasudevaya means to Krishna, the son of Vasudeva. Since the chanting the name of Krishna, Vasudeva, one can achieve all good result of charity, austerity, and penances. It is to be understood that by the chanting of this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, the author or the speaker or any one of the readers of Srimad Bhagavatam is offering respectful obeisances unto the Supreme Lord Krishna, the reservoir of all pleasure. In the first canto of Srimad Bhagavatam, the principle of creation are described, and thus the first canto may be called creation. In the second canto, the post-creation cosmic manifestation is described. The different planetary systems are described in the second canto as different parts of the universal body of the Lord. For this reason, the second canto may be called the cosmic manifestation. There are 10 chapters in the second canto, and in these 10 chapters of the purpose of Srimad Bhagavatam and the different symptoms of this purpose are narrated. The first chapter describes the glories of chanting, and it hints at the process by which the neophyte devotee
may perform meditation on the universal form of the Lord. In this first verse, Sukadeva Goswami replies to the questions of Maharaja Parikshit, who asked him about one's duty at the point of death. Maharaja Parikshit was glad to receive Sukadeva Goswami, and he was proud of being a descendant of Arjuna, the intimate friend of Krishna. Personally, he was very humble and meek, but he expressed his gladness that Lord Krishna was very kind to his grandfathers, the sons of Pandu, especially his own grandfather Arjuna, and because Lord Krishna was always pleased with Maharaja Parikshit family at the words of Maharaj Parikshit's death, Sukadeva Goswami was sent to help him in the process of self-realization. Maharaja Parikshit was a devotee of the Lord Krishna from his childhood, so he had natural affection for Krishna. Sukadeva Goswami could understand his devotion. Therefore, he welcomed the questions about the king's duty, because the king hinted that worship of Lord Krishna is the ultimate function of every living entity. Sukadeva Goswami welcomed the suggestion and said, because you have raised question about Krishna, your question is most glorious. This translation of the first verse is as follows. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Well, why it is not Om Namo Bhagavate Krishnaya or Ramaya or Narsimhaya? Why only Vasudevaya? Because whenever Krishna has to kill any demon, he takes the form of Vasudeva. Vasudeva kills the demon. Krishna does not. Krishna only enjoys. He doesn't want to kill anybody. He has no time. But in order to establish the religion, he comes as a Vasudeva. So within the heart of the devotees, initial sanction is we have the demon within our heart. We have papas within our heart. We have so many the bad thing in our heart. So Vasudeva can kill demons and kill in the heart. So that's why it says Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Is another name of Krishna, but Vasudeva in particular is an incarnation that kills the demon. Hare Krishna. So let us take the text first today. Sri Sukho Vacha Variyaneshate Prashnaha Krito Lokahitam Nirpa Atmavit Sammata Punsam Shrotavyadisu Yaha Paraha. Sri Sukho Vacha Variyaneshate Prashnaha Krito Lokahitam Nirpa Atmavit Sammata Punsam Shrotavyadisu Yaha Paraha. Sri Sukho Vacha Variyaneshate Prashnaha Krito Lokahitam Nirpa Atmavit Sammata Punsam Shrotavyadisu Yaha Paraha. What meaning? Sri Sukho Vacha, Sri Sukadeva Goswami ने कहा, बरियान महिमा युक्त एषः यह ते तुम्हारा प्रश्न सवाल कृतः तुम्हारे द्वारा किया गया लोकहितम सभी मनुष्यों के लिए लाभप्रद निरपह हे राजा आत्मविद आध्यात्मवादी योगी सम्मतः स्वीकृत पुंसाम सभी पुरुषों का श्रोतव्य आदिसु सभी प्रकार के श्रवण में यह जो है परह परम या सर्वश्रेष्ठ. Translation purport by Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada.
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। परपोर्ट बाय भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेसी ऑफ शिला प्रभुपाद। यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं। अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं। अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराजा परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं। महाराजा परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, त्रिभाव तथा उनकी दिव्य लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता है। अतएव सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराजा परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिसे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सकें। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण के अभिन्न हैं। तब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह यह जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती हैं। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि वे जहाँ भी इनका कथन होता है वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषंतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपथन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदाप्रगमनं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशागलवतरो वैश्यकृपा सिन्धुवेव च हरिनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामने नमाचार्य पादाय नेता कृपा प्रदायने गौरदामदाय नगरगाम धारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्रील प्रभुपाद। श्री सुखोवाच। हम पहली बार सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं। श्री सुखोवाच। क्या वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहित निर्भ आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोताव्यादिषु यः परः। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? हे राजन, परीक्षित महाराज सब त्याग के आ गए हैं। शायद मैंने पहले इसमें चर्चा की है। परीक्षित महाराज सब त्याग के आ गए हैं और एक लंगोट है, खाली बैठे हैं, सब त्याग दिया है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता कह रहे हैं, हे राजन तुम राजा हो। क्यों? कि आप समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। जो आपने प्रश्न किया है आपके लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए वरीयान महिमा है, सबको सुख देने वाला है, सबकी ज्ञान में वृद्धि करने वाला है, सबको सद्गुण में लाने की प्रवृत्ति रखता है। हे राजन तू महान हो, कॉपी में है लेकिन फिर भी राजा है। यह राजा का कर्तव्य, अपनी प्रजा की रक्षा करना। और उस प्रजा में चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कीट हो, पतंग हो, जीव हो, जंतु हो, चाहे फल हो या पेड़ हो, पौधे हो, सबका ये राजा का कर्तव्य है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं तुम असली राजा हो। क्या पूछना है? भगवान कृष्ण के बारे में। आपने सुना होगा ना, सत्यम वद प्रियम वद। अब सत्य हमेशा कड़वा होता है। जो भी आप सत्य बोलने की कोशिश करेंगे वो रिलेटिव सत्य है। द ट्रूथ दैट वी स्पीक इज वेरी रिलेटिव, मीन्स व्हाट वी हैव सीन, नॉट ओनली सीन, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व। तो हम सत्य कैसे बोलेंगे? इसलिए कहा गया है कि हमेशा श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का प्रचार कीजिए। आप हमेशा सत्य बोलेंगे और आप सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी जीवन में आप जितना बोलते हैं, जितना बोलेंगे, वो रिलेटिव सत्य हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा एंड अबाउट कृष्णा स्नेहात भयात द्वेषात। कृष्ण के बारे में प्रेम से, भय से या द्वेष से अगर भगवान की याद करें तो सबको मुक्ति मिलती है। अब कई प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य सारष्टि, साहिज्य सारूप्य सालोक्य सृष्टि है, लेकिन मुक्ति मिलती है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षित महाराज ने जो पूछा, सुखदेव गोस्वामी का हृदय भी भाग भाग हो गया। वाह वाह वाह। और जो भगवान की कथा है, गोपियां भी कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम। तब कथामृतम, आपकी कथा मरणासन्न लोगों के लिए अमृत है। अमृत का मतलब है जिससे अकाल मृत्यु नहीं होती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। जो तप्त जीवन है उसको शांत कर देती है। कहीं हाथ जल जाए, कोई चीज जल जाए, हम उसमें जब बर्नों लगाते हैं ना या आइस लगाते हैं ना, ठंडक पड़ती है। तो भगवान कृष्ण की कथाएं भी इस भौतिक संसार में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली हो, मरहम का काम करती है। और वो कह रहे हैं ये जो आध्यात्मवादी हैं
जो बड़े बड़े भक्त हैं उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। और एक श्लोक आता है जो मैं बार बार कहीं रिपीट करता हूँ, आज मुझे पूरा श्लोक मिल गया है तो मैं पढ़ूंगा उसको। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः, जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः, नराणां क्षीण पापानां कृष्ण भक्ति प्रजायते, नराणां क्षीण पापानां कृष्ण भक्ति ही प्रजायते। अर्थात हजारों जन्मों के तपस्या ध्यान समाधि के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, उन्हीं लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है। दोबारा पढ़ता हूं। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः, नराणां क्षीण पापानां कृष्ण भक्ति प्रजायते। तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना जन्मांतर, जन्मों जन्मों की तपस्या का फल है। अच्छा, जाने ही नहीं, हम भगवान को पहचानने भी लगे हैं, भगवान को पहचानने लगे हैं प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में जब भगवान हमारे सामने होते हैं या हम भगवान के सामने होते हैं या मंदिर को दर्शन करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप में जब भगवान नहीं होते हैं लेकिन उनकी जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमारे मन मस्तिष्क में चलता रहता है। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हम भगवान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। खाली जो टाइम हम सोते हैं उसको अगर निकाल दिया जाए तो भगवान को हम देखते हैं। और भगवान को देखना इतना आसान नहीं, जैसे मैंने कहा श्लोक है भगवद गीता का, बहुनाम जन्मनाम अन्ते यानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहम आत्मा सुदुर्लभः तो तब कथामृतम्। इसलिए कहा गया है कि हर रोज कृष्ण कथा होनी ही चाहिए। अगर प्रवचन करने का मौका नहीं मिले तो स्वाध्याय कीजिए, अगर स्वाध्याय करने का मौका नहीं मिले तो अपनी टेप कर दीजिएगा, अपने टेलीफोन पर टेप कर दीजिए, और उसके बाद जब आपके पास समय हो वो टेप सुनिए, आपने क्या पढ़ा, आपको क्या याद है। और इस प्रकार आपको श्लोक भी याद हो जाएंगे। जब बार बार आपका अपने द्वारा कहा गया श्लोक आप बार बार सुनेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज प्रभुपाद कहते हैं, प्रश्न स्वयं इतना उत्तम है कि श्रवण करने वाला का सर्वश्रेष्ठ विषय बन जाता है। बहुत सारे विषय हैं संसार में, हजारों विषय हैं जिन पे वार्तालाप होती है, जिन पे अनुसंधान होते हैं, जिन पे चर्चाएं होती हैं, जिन पे वाद प्रवाद होता है, जिसमें वाद विवाद होता है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है जिसमें वाद विवाद नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो है भगवान के बारे में जिज्ञासा होती है, भगवान के बारे में जो है समझने की कोशिश की जाती है। और तब सुनने वाला हो, प्रश्न करने वाला हो, बोलने वाला हो, सबका जीवन आनंदमय हो जाता है। और क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप आनंद है, आनंदमय है, तो हम उसी आनंद की खोज में हैं, चाहे कुंठा न हो, चाहे कोई परेशानी न हो। और वो कौन होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। ये सोचना और कांक्षा क्या है? अपने शरीर के बारे में, अपने नेम और फेम के बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में। तो ब्रह्मभूत जो होता है, न सोचते न कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मेरी फेम, मेरा ज्ञान, मेरा ये, मेरा वो,
उपाधि, 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 और उसके बाद है उपाधि। हम सब लोग जो है ना धन एकत्र करते हैं, धन मालूम है आपको, धन एकत्र करते हैं, और कुछ समय बाद हमको क्या बोलते हैं, बेचारा इसका निधन हो गया, धन बोलते हैं इसका निधन हो गया, जो कमाया सब छोड़ के चला गया। तो जिस धन के पीछे हम भागते हैं वही धन हमको मरणोपरांत निधन बना देता है कि बस इसका निधन हो गया भाई। तो यह है धन की महिमा। बहुत अच्छा श्लोक है ना, पुत्र परिजन, व्हाट इज स्टार्टिंग, ये धन यौवन पुत्र परिजन ईते के आची परतीति रे, कोमल दल जल जीवन तलमल बजाहूँ हरि पद नीति रे, बजाहूँ हरि पद नीति रे। हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन हम समझते नहीं है, बस जानते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। अनासक्त कर्म फलम, जब तक हमारा कर्म फल अनासक्ति नहीं होगा हम लिप्त ही रहेंगे। और देखिए यहां महाराजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा भगवान के बारे में, और भगवान के बारे में प्रश्न करनी चाहिए। कई साल पहले की बात है, हम गुरु महाराज से शिकायत करते हैं ना, गुरु महाराज ने मेरे से शिकायत की, यू नो समथिंग, ऐसे नो गुरु महाराज आई डोंट गेट ए चांस टू प्रीच। ऐसा है, यू डोंट गेट ए चांस टू प्रीच, व्हाई? बोला वेर एवर आई गो हाफ डे गोज इन लिसनिंग टू द कंप्लेनिंग, वेर एवर आई गो, एनी टेम्पल आई गो, complain. When I will preach? I said, Guru Maharaj, I promise you in my life, I would never ever complain about anything. He laughed. And somehow or other, I kept the promise. I never complained. That's our habit. We're bound to complain. Oh, this Prabhu is like this Prabhu like this Prabhu like this. I don't get a chance and things like that. You know, I'm here for so many years. I didn't get a chance to preach. Complain, right? To tell Guru Maharaj or somebody, see, I'm better than everybody, and see, nobody listening to me. तो सबसे बढ़िया भैया चुपचाप बैठो, चांद करो, पठन करो, पाठन करो, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, और मजे में रहो। और मजे में रहो। लेकिन बार बार चीज आते ना, अरे ऐसा हो गया, अरे भाई वैसा हो गया, अरे भाई कुछ नहीं हुआ। हमने आपको पहले कहा था, हम लोग मकान बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, समाज बदलते हैं, पत्नी बदलते हैं, पति बदलते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन अपने मन को कभी नहीं बदलते। जबकि अगर मन को बदलें तो और किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ बदलेंगे, अपने मन को नहीं बदलेंगे। और फिर कहते हैं, प्रभु आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ। ऑफ कोर्स यू विल फेस द प्रॉब्लम इन लाइफ, व्हाई नॉट? यू चेंज योरसेल्फ। सी इफ दैट्स अ रेनी सीजन, जब अगर बरसात का मौसम है, यार आप बरसात को नहीं रोक सकते हैं, आप में ताकत नहीं है, आप बरसात को नहीं रोक सकते। तो क्या करें? छाता लेकर के जाए या रेनकोट कर लेकर जाए, अपना काम कीजिए। ये यार बरसात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यार सब कवाड़ा हो गया, कवाड़ा कुछ नहीं भैया, ये तो साइकिल है, तो आना ही है। दुखने भी आना है, सुखने भी आना है। सिर्फ सुख याद नहीं रहते हैं, दुख हमेशा याद रहता। फर्क इतना ही है, बराबर का ये जो स्केल है ना, बराबर है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, दुख हमेशा याद रहते हैं, सुख याद नहीं रहता। आपने कभी नहीं कहा होगा भगवान को जाकर
हे भगवान कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 20 साल से हर महीने मुझे सैलरी मिल रही है। हमारा कंप्लेन क्या होगा? अरे यार भगवान, तुम ये कैसा न्याय है? मेरे पड़ोसी को ज्यादा इंक्रीमेंट मिली, मेरे को कम मिली। ये कंप्लेन है भगवान से भी। क्या न्याय है? ये नहीं कि 20 साल से या 40 साल से हर महीने मुझे तनख्वाह मिलती है। प्रभु तुम्हारा शुक्र हो जा, न हो तो। ये कथा मैंने आपको पहले सुनाई थी, मैं दोबारा सुनाने की कोशिश करता हूँ। जनरली आई डोंट हैव टू रिपीट, बट कभी विषय वस्तु आ जाते तो मजा आ जाता है। ये गांव में एक धनी व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था। उसके गांव में लोग गरीब रहते थे, तो उनको दया आई। उसने कहा ऐसा है यार, हर व्यक्ति के हिसाब से जितने परिवार में सदस्य हैं सबको, हर व्यक्ति को 10 रुपए महीना दिया जाएगा। तो किसी के परिवार में 5 आदमी थे, किसी के 6 आदमी थे। इस प्रकार इंटू 10 वो सबको पैसा देता गया, हर महीने पैसा देता गया। कुछ सालों उपरांत जब वो लोग पैसा लेने आए उसके पास, ट्रेजरर के पास, कैशियर के पास, तो कैशियर ने कहा भैया इस महीने से आपको आधा मिलेगा। सब लोग गुस्से में आ गए, क्यों? आधा क्यों मिलेगा? हमारा पूरा हक बनता है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है ना, जो सेठ है ना उसके घर में शादी है, शादी में खर्चा हो गया तो इसलिए कम। बोला अच्छा, हमारे पैसों से बेटी की शादी कराएगा, इसको शर्म नहीं आती? हमारे पैसों से बेटी की शादी कराएगा, इसको शर्म नहीं आती? कितना बदतमीज आदमी। तो देखिए उनकी मेहरबानी से उनका घर चल रहा है, और ये बोले ये बदतमीज आदमी है कि हमारे पैसों से उसकी बेटी की शादी कराएगा। बताइए। इसी प्रकार भगवान हमें सब कुछ देते हैं, कभी नहीं देते कंप्लेन करते हैं ये क्या है भाई? है? ये भगवान को अकल नहीं है क्या? मेरे को दुख दर्द दिया, इस भगवान को अकल नहीं है यार। ये देखिए ऐसी हमारी महानता है अपने भगवान के लिए। ये नहीं कि जो तूने दिया, जो मिला तेरी रजा, जो ना मिला मेरी खता। जो मिला तेरी रजा, हे भगवान जो मुझे मिल रहा है ये तेरा आशीर्वाद है, और जो कुछ मुझे नहीं मिल रहा है ना इसमें मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने बराबर कर्म नहीं किए होंगे तो क्यों मिलेगा? मैं तुम्हें दोस्त क्यों? लेकिन हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तो लीजिए साहब, इस प्रकार कहानी है। वेरी अंत प्रश्न। अगर आप भी चाहें, आप हमेशा सच बोलना चाहते हैं, तो भागवतम का प्रवचन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तब आप हमेशा सत्य बोलेंगे, सही बोलेंगे और उत्तम बोलेंगे। वरना जो भी बोलेंगे भागवतम के अलावा, गीता के अलावा या वैष्णव के अलावा, हम सब रिलेटिव सच बोलेंगे, और कब कभी तो झूठ बोलेंगे। बोले यार मैं सच बोल रहा हूं, क्या किया जा सकता है? तो आइए आज के श्लोक में ये मान के चलें, हमें सत्य बोलना है, यानी हर दिन प्रचार तो करना ही है। बहुत है प्रचार करने वाले, बहुत मिलेंगे आपको ऑफिस में मिलेंगे, आपको वर्क प्लेस में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। ये डायरेक्ट आपको कृष्ण नहीं बोलना है, लेकिन मॉरल तो आप बता सकते हैं, और मॉरल जो आप बताएंगे सबको पसंद आएगा, क्योंकि सब चाहते हैं जीवन शांति से चले। अशांति से जीवन कोई नहीं चलाना चाहता है। तो आपकी बात लोग सुनेंगे, लेकिन आपको मालूम आप किस शांति की बात कर रहे हैं? भगवान की पद धूलि की बात कर रहे हैं, भगवान के चरणाविंद की बात कर रहे हैं, भगवान के ध्यान और स्मरण की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार हमारा जीवन में भी आनंद से भरपूर होगा, और कोई दो राय नहीं। हरे कृष्णा। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।